Good morning, student. Myself Chirag Sukani, and I am going to teach you Advanced Financial Management subject. Now we will continue our chapter that is Cost of Capital, and in that 15 number sum. Now X Limited has the following book value capital structure: equity share in share of rupees 10 each, fully paid up at par 15 crore. So these are the capital structure is given. Now the next expected dividend on equity share per share is rupees 3.60. The dividend per share is expected to grow at the rate of 7%. The market price per share is what? Rupees 40. Preference stock redeemable after 10 years is currently selling at rupees 75 per share. Debenture redeemable after 6 years are selling at rupees 80 per debenture. The income tax for the company is what? 40%. Calculate WACC using book value weight and the market value weight. So आपका फर्स्ट में WACC करना है यूजिंग बुक वैल्यू वेट एंड द मार्केट वैल्यू वेट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन. Then second, define weighted marginal cost of capital schedule of the company if it raise 10 crore next year given the following information. So ये नेक्स्ट सम हो जाएगा. एक ही सम्स में दो सम्स बन गया. 10 करोड़ एक्सपांशन करना है, सो उसने ये मनी रेज किया थ्रू इक्विटी एंड द डेप्ट इन इक्वल प्रपोर्शन. कंपनी एक्सपेक्ट टू रिटेन 1.5 करोड़. द एडिशनल ऑफ इक्विटी शेयर रिजल्ट इन फिक्स रुपीज 32 रुपीज. Then debt carry raise of by way of term loan will cost 15% for the first 2.5 crore and 16% for the next 2.5 crore. It means ये एक सम है बट एक सम में दो सम्स दे दिया है. क्लियर? चलो फर्स्ट सम्स इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, रिटेन अर्निंग है और डिबेंचर है और टर्म लोन है. तो यहाँ पे आपको 5 कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. चलो इक्विटी है तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के. Now equity share in share rupees 10 each. So 10 उसका फेस वैल्यू हुआ, ओके, एंड 15 करोड़ उसका अमाउंट हुआ. Now इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है. द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पर शेयर इज रुपीज 3.60. एक्सपेक्टेड यानी D1. सो D1 इज गिवन 3.60. The dividend per share is expected to grow at the rate of 7%. यानी G is given 7%. And the market price per share is rupees 40. यानी P0 is given. P0 is what? 40. Okay. So ये सब information दे दिया. So we can easily calculate कि कुछ flotation cost वगैरह नहीं दिया. So D1 upon PO plus G. D1 3.60 divided by P0 40 plus G 0.07. So 3.60 divided by 40 0.09 plus 0.07. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आंसर आया 0.16. क्लियर? नाउ सेकंड इज व्हाट? केपी करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया? 11% प्रेफरेंस कैपिटल यानी डीपी इज गिवन. डीपी इज गिवन 11%. Now 11% preference capital in share of rupees 100 each. So 100 face value is given 100 and 1 करोड़ प्रेफरेंस कैपिटल हुआ. ना प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया? द प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स. रिडीमेबल मतलब आरवी, ओके, और 10 ईयर्स. सो एन इज व्हाट? 10. नाउ रिडीमेबल हुआ आरवी. नाउ रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स. सो रिडीमेबल कुछ नहीं दिया है. सो आरवी क्या होगा? रिडीमेबल एट पार एट फेस वैल्यू. सो रिडीमेबल वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा. ओके. Redeemable after 10 years is currently selling at rupees 75 per share. Currently selling an SP. So SP is given 75. Flotation cost कुछ नहीं दिया है. Okay. Now DP preference dividend 11% है. It is calculated on face value. Okay. So 100 का 11% क्या हो जाएगा? 11 ही हो जाएगा. और आपको ये फॉर्मूला पता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. KP is what? DP plus 1 upon n. 1 plus dt भी नहीं आएगा बिकॉज डिविडेंड टैक्स रेट है ही नहीं. सो dp 1 upon n इंटू ब्रैकेट rv माइनस sp अपॉन 1.2 rv प्लस sp. सो dp कितना? 11 प्लस 1 upon n 10 years rv 100 माइनस sp 75 डिवाइडेड बाई 1 upon 2 100 प्लस 75.
100 का 100 प्लस 1/2, 10 का 1/10, 100 माइनस 75, 25 डिवाइडेड बाई 1/2 and 175. So 11 का 11 plus 1/10 into 25, that is 2.5, and 1/2 into 175, that is 87.5. Okay, so 13.5 divided by 87.5, so KP आया 0.1543. क्लियर? नाउ KP के बाद रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है ना, रिटेन अर्निंग. सो KR, and we all know that KR is what? KE when the flotation cost is not given, so KR is equal to KE ना. Okay, so KR is equal to KE, so KR भी क्या बन जाएगा 0.16, जो KE का आंसर आया वो. देन 13.5 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, अमाउंट 10 करोड़, सो KD मिलेगा. ओके, now 13.5 डिबेंचर यानी इंटरेस्ट रेट I 13.5%, उसका फेस वैल्यू 100. ओके, अभी डिबेंचर के बारे में पढ़ो कि डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 6 years यानी n नंबर ऑफ ईयर्स n 6, और रिडीमेबल बोला है ना, रिडीमेबल आफ्टर 6 years बोला है खाली. सो रिडीम कैसे हुआ होगा एट पार से, एट फेस वैल्यू से. सो आरवी का अमाउंट क्या आएगा 100, एंड सेलिंग एट ₹80 पर डिबेंचर, एंड एसपी कितना दिया 80 दिया. फ्लोटेशन कॉस्ट भी कुछ दिया हुआ नहीं, और फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर्ड नहीं हुआ है. ओके, अभी आपको पता है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, सो 13.5% ऑफ 100, सो अमाउंट इंटरेस्ट का अमाउंट क्या आएगा 13.5. सो केडी का फॉर्मूला I इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी प्लस 1/n RV माइनस SP अपॉन 1/2 RV प्लस SP. नाउ टैक्स रेट, नाउ सम्स पढ़ना पूरा, और नीचे टैक्स रेट दिया है कितना 40%. Okay, the income tax rate for the company is what 40%. Okay, so tax rate भूलना नहीं है 0.40. So I 13.5 into bracket 1 minus 0.40 plus 1/6, 6 years है, RV 100, SP 80 divided by 1/2 100 plus 80. Now 13 point का 13.5, 1 minus 0.40 यानी 0.60 plus 1/6 100 minus 80 20 divided by 1/2 100 plus 80 100 यानी 80. So 13.5 into 0.6, that is 8.1 plus 1/6 into 20, that is 3.33 divided by 118 divided by 2 90. So 11.43 divided by 90. So आपका आंसर आया 0.127. क्लियर? देन आफ्टर टर्म लोन, सो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन भी आएगा. देन आफ्टर कॉस्ट ऑफ टर्म लोन. नाउ आपको पता है टर्म लोन का सिंपल सा फॉर्मूला 15% टर्म लोन ऑफ 12.5 करोड़. ओके, सो हम लोग को तो 12.5 ही लेना, करोड़ को हम लोग नहीं ले रहे, सो 12.5. सो इंटरेस्ट रेट 15% ऑफ 12.5, अमाउंट इन करोड़, सो 12.5 होगा. सो 15% ऑफ 12.5 करोगे तो आंसर आएगा इंटरेस्ट 1.875. और आपको पता है कॉस्ट ऑफ टर्म लोन का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन इज इक्वल टू व्हाट I, सेम एज व्हाट कॉस्ट ऑफ डेट ना. सो इंटरेस्ट कितना 1.875 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट 0.40, वो तो भूलना ही नहीं है, और सेलिंग प्राइस 12.5 करोड़, सो 12.5 लेना है. क्लियर? सो 1.875 इंटू ब्रैकेट 0.6 डिवाइडेड बाई 12.5. क्लियर? सो 1.125 डिवाइडेड बाई 12.5. सो आपका आंसर आया 0.09. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या करो 12.5 करोड़
ओके, तो जीरो बढ़ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ का 15% निकालेंगे तो आपका केडी आएगा 1,87,50,000, 1,87,50,000। ओके, सो यहाँ पे आप लिखोगे 1,87,50,000, वो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे लिखोगे 12,50,00,000। क्लियर? तो भी आंसर सेम ही आएगा। सो हम लोग अभी WACC कैलकुलेट करेंगे एज पर बुक वैल्यू वेट, और हमें पता है उसका टेबल सोर्स, अमाउंट, प्रपोर्शन, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट। सोर्स इक्विटी शेयर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन अर्निंग, 13.5% डिबेंचर एंड 15% टर्म लोन। क्लियर? नाउ अमाउंट इन करोड़ तो उसको कन्वर्ट करो ही नहीं, हम लोग को तो अमाउंट से नहीं चाहिए, हम लोग को तो प्रपोर्शन चाहिए। सो 15, 1, 20, 10 एंड 12.5, तो आपका आंसर आएगा 58.5। क्लियर? अभी क्या करना है, 15 डिवाइडेड बाई 58.5, सो आपका आंसर आएगा प्रपोर्शन 0.26, 1 डिवाइडेड बाई 58.5 0.02, then 0.34, then 0.17 and 0.21, सो 1 आ जाएगा। कॉस्ट हम लोग ने कैलकुलेट किया 0.16, 0.1543, 0.16, 0.127, 0.09, सो मल्टीप्लाई 0.0416, 0.003086, 0.0544, 0.02159 and 0.0189, सो टोटल करोगे 0.1394, सो WACC क्या आएगा 13.94% एज पर दी बुक वैल्यू वेट। नाउ नेक्स्ट WACC एज पर दी मार्केट वैल्यू वेट। नेक्स्ट क्या करना है, WACC एज पर दी मार्केट वैल्यू वेट। सो WACC एज पर मार्केट वैल्यू वेट। ओके, नाउ मार्केट वैल्यू वेट है, सो टेबल तो आपका सेम ही रहेगा, सोर्सेस, अमाउंट, देन प्रपोर्शन, देन कॉस्ट एंड देन वेटेड कॉस्ट। सोर्स सेम ही रहेगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग निकल जाएगा, डिबेंचर एंड दी टर्म लोन। क्लियर? ना अभी आपको मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, सो यहाँ पे वर्किंग नोट होगा आपका। सो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, और आपको पता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर दैट इज करंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, पता है ना। नाउ प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर कितना था 40 इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। आ रहा है समझ में, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। सो 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा 1,50,00,000 आएगा। ओके, तो आपका आंसर आएगा 60 करोड़। ओके, ये और करोड़ में आंसर लिखना है तो 60 करोड़। क्लियर? सो यहाँ पे क्या होगा आपका अमाउंट 60। देन मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइंड आउट करेंगे। सो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सेम ही, करंट प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स इनटू नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ना मार्केट प्राइस ऑफ द करंट प्राइस ऑफ द मार्केट शेयर कितना है 75 है सेलिंग प्राइस, इनटू प्रेफरेंस शेयर्स का नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 ना, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, सो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, तो आपका प्रेफरेंस शेयर्स आएगा 1 लाख शेयर्स। ओके, तो आपका क्या आंसर आएगा 75 lakhs। उसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.75 करोड़।
आ रहा है समझ में? तो 0.75 करोड़। देन मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, वो तो सॉरी थर्ड मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर करंट प्राइस इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर। ओके, करंट प्राइस ऑफ डिबेंचर कितना है 80 और नंबर ऑफ डिबेंचर क्या होगा 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 100। 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, तो आपका नंबर ऑफ डिबेंचर आएगा 10 लैक्स। क्लियर? सो 10 लाख इंटू 80 दैट इज 8 करोड़। 8 करोड़। क्लियर? सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिबेंचर 8 करोड़। एंड टर्म लोन का तो मार्केट वैल्यू जो बुक वैल्यू वही रहेगा 12.5 करोड़। तो आपका टोटल आएगा 81.25 करोड़। क्लियर? अभी प्रपोर्शन निकालना है। सो प्रपोर्शन निकलेगा 60 डिवाइडेड बाई 81.25, सो 0.74, देन 0.009, देन 0.098 एंड यहाँ पे 0.154 आएगा, बट हम लोग 3 लेंगे तो ये आपका 1 आएगा प्रपोर्शन में। क्लियर? कॉस्ट 0.16, then 0.1543, 0.127 and 0.09। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.1184, 0.0014, 0.0124 एंड 0.0138। तो टोटल आएगा 0.146। सो WACC क्या आ जाएगा 14.6%। क्लियर? सो ये हम लोग का ए आंसर हुआ। क्लियर? ना बी में क्या पूछा, डिफाइन वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल ऑफ द कंपनी इफ इट रेज 10 करोड़ नेक्स्ट ईयर। ओके, सो अभी आपका नया बी सेकंड आंसर। सेकंड आंसर में 10 करोड़ रेज करना है। 10 करोड़ कैसे? 10 crore next year given the following information, the amount will be raised by the equity and debt in equal proportion। उसका मतलब क्या होगा, इक्वल यानी इक्विटी 5 करोड़ एंड डेप्ट 5 करोड़ से मनी रेज करने इक्वल प्रोपोर्शन में। देन बी, द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिटेन 1.5 करोड़ अर्निंग नेक्स्ट ईयर, यानी कंपनी रिटेन्ड अर्निंग रख रही है, retained earning 1.5 crore। okay, therefore equity retained earning always comes from the equity। clear? so equity क्या बन जाएगा 5 करोड़ माइनस 1.5 रिटेन अर्निंग का, सो एक्चुअल इक्विटी क्या बन जाएगा 3.5 करोड़। आ रहा है समझ में? सो ऑलवेज याद रखना आपको कि जो भी इक्विटी है ऑलवेज इट कम्स फ्रॉम दी रिटेन अर्निंग ऑलवेज कम्स फ्रॉम दी इक्विटी। सो 5 करोड़ इक्विटी था, उसमें से 1.5 करोड़ रिटेन अर्निंग निकल गया, सो आपका एक्चुअल इक्विटी कितना आ गया 3.5 करोड़। क्लियर? नाउ पूरा सम्स पढ़ना ही पड़ेगा आपको। द एडिशनल इश्यू ऑफ द इक्विटी शेयर विल रिजल्ट इन द नेट प्राइस पर शेयर बीइंग फिक्स्ड ₹32। यानी जो मनी रेज किया ना, तो प्राइस ऑफ द शेयर्स कितना हो गया 32, पहले क्या था 40 था। देन the debt capital raised by way of term loan will cost 15% for the first 2.5 crore and 16% for the next 2.5 crore। यानी जो आपका टोटल डेप्ट था 5 करोड़, तो 5 करोड़ 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया, कितना 15% ऑफ 2.5 करोड़ एंड नेक्स्ट 16% ऑफ 2.5 करोड़। क्लियर? तो हमारा भी एक्चुअल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सोर्स अभी क्या बनेगा इक्विटी, इक्विटी के बाद रिटेन अर्निंग, उसके बाद 15% डेप्ट एंड देन 16% डेप्ट। इक्विटी 3.5 करोड़, रिटेन अर्निंग 1.5 करोड़, 15% डेप्ट ऑफ 2.5 करोड़ एंड 16% डेप्ट ऑफ 2.5 करोड़। तो आपका 10 करोड़ का अमाउंट आ गया। आया समझ में? क्लियर? अभी हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे के। सो के का फॉर्मूला D1/PO प्लस
जी। नाउ जो मनी रेस किया 10 करोड़, तो डिविडेंड में तो कोई चेंज नहीं आया, जो पहले था वही, सो 3.60 रहेगा। बट प्राइस में चेंज आ गया, कितना आ गया? द एडिशनल इश्यू ऑफ द इक्विटी शेयर विल रिजल्ट इन द नेट प्राइस पर शेयर बीइंग फिक्स्ड टू 32। सो प्राइस चेंज होकर 32 हुआ। ग्रोथ रेट में भी कोई चेंज नहीं आया, 0.07 ही रहा। ओके, तो डिवीजन प्लस 0.07, तो आपका आंसर आया 0.1825 के का, नया के। क्लियर? अभी के आर, नाउ के आर ऑलवेज रिमेंबर, ये तो मनी रेस किया, उसमें से रिटेन अर्निंग आया। ओके, सो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो ये क्या हुआ, नया मनी रेस किया तो नया के ही आया। क्लियर? नाउ जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है वो तो जो पहले था ना वही रहेगा, बिकॉज ये कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग अभी नया नहीं रेस किया है। नो डाउट इक्विटी में से रिटेन अर्निंग रखा है 1.5, बट कॉस्ट जो पहले था ना वही रहेगा। ये तो एडिशनल एक्सपांशन के लिए मनी रेस किया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में चेंज आया, बट जो पुराना जो किया है ना वही आपको यहां पे लेना पड़ेगा। सो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग पहले क्या था, 0.16 था। क्लियर? देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट ऑफ 15% वाला वो निकालना आपसे। कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ 15% ऑफ 2.5 करोड़ ना। क्लियर? सो केडी क्या बनेगा, आई 1 माइनस टी अपॉन एस पी। ना 15% ऑफ 2.5 करोगे तो के आई आएगा 0.0375 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.40 एस पी 2.5। So 0.0375 into bracket 0.6 divided by 2.5. ओके, तो 0.24 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आपका आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पे 0.224 आएगा, सॉरी 225 आएगा डिवाइडेड बाय 2.5, तो आंसर आएगा 0.09। क्लियर? ये 15% का केडी। देन 16% वाला केडी, 16% ऑफ 2.5, सो केडी इज व्हाट, आई 1 माइनस टी अपॉन एस पी। 16% ऑफ 2.5 दैट इज 0.4, 1 माइनस 0.40 डिवाइडेड बाय 2.5, 0.4 इंटू 0.6 2.5, तो 0.24 डिवाइडेड बाय 2.5, तो 0.096 आया। क्लियर? अभी हम लोग एज यूजुअल हमारा जो WACC वो सोर्स, अमाउंट, प्रपोर्शन, कॉस्ट एंड वेटेड कॉस्ट। सोर्स में अभी इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, 15% डेप्ट एंड 16% डेप्ट। इक्विटी 3.5 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 एंड दी 2.5। क्लियर? सो आपका टोटल कितना था, 10 करोड़। प्रपोर्शन क्या निकलेगा, 0.35, 0.15, 0.25 एंड 0.25, तो 1 आया। कॉस्ट अभी नया फाइंड आउट किया वो 0.1825, रिटेन अर्निंग में ओल्ड ही लेना है बिकॉज वो पुराना होता है, 0.09 एंड 0.096, तो टोटल मल्टीप्लाई होगा, क्लियर? तो टोटल आया 0.1343, सो WACC इज व्हाट, 13.43%। ओके, तो ये सम्स में, एक ही सम्स में दो सम्स दिया हुआ था। फर्स्ट वाला कुछ अलग ही सेकंड में जो नया मनी रेस किया थ्रू डेप्ट एंड इक्विटी। क्लियर? ऐसा करने से प्राइस ऑफ इक्विटी चेंज हो गया, बट रिटेन अर्निंग में तो कोई चेंज नहीं आया होगा। सो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो एज यूजुअल ओल्ड था वही आपको लेना है। क्लियर? बाकी ये सम्स में कुछ नया नहीं था, वही था सेम। Now, next sum in next video. Bye. Take care.